रिकॉर्डिंग को ऑन होने दो, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट. Okay, guys. Today we are going to discuss three programs: how to implement stack and queue using linked list, and the third program is of circular linked list. Last week I told you that you need to implement I told you that you people must try to implement circular linked list program at your home. So is there anyone who tries to implement circular linked Yes, list? yes, ma'am. Yes, ma'am. Implement हुआ या नहीं हुआ? हुआ है. Very good. Is what about rest of the batch? Because in your circular linked list there will be only four cases: insert at beginning, insert at end, delete at beginning, delete at मैम end. ट्राई Yes, Manish? मैम ट्राई किया है केवल मतलब एक दो प्रोग्राम लिखे हैं, मतलब एक दो स्टेप लिखे हैं, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या करना था. Why? Algorithm you already discussed in your यस lectures. यस मैम, बट पता है क्या है मैम, इनफिनाइट टाइम वो रन कर रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए छोड़ दिए, मन नहीं किया. This is not the way. I already told you that if you people are facing any kind of doubt, at that time you can inform me that ma'am, right now I'm doing this program, and in this program I am having this error. Because the main problem is that the error because of your misplaced brackets. I just checked the program of Umang. He just opened four brackets and closed only three. So let me again share you people my screen. मैम वो कभी कभी हुआ है, हम तो बनाने के समय तो दिए ही थे. नहीं, मैंने ये नहीं बोला कभी कभी हुआ है. That is why I told you that if you people really want to learn C programming, you can use Turbo C. Because till now, what you have people learned, it is not your fault. What you have people learned because of these modern compilers, you just learn to open opening bracket, because the closing bracket is automatically there whenever you tries to open the bracket. अब उस चक्कर में अगर वो आपसे ऑटोमेटिकली वो क्लोज भी हो जाती है तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि अभी तक हमने तो सिर्फ यही सीखा है कि हमें सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है. ब्रैकेट को क्लोज भी हमें करना होता है, वो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न कंपाइलर्स. एक बार ट्राई करना एक नॉर्मल प्रोग्राम टर्बो सी में बनाने का. That time you will realize that there will you need to pay attention of a lot of things. So today this is the practical number 8, to implement stack using linked list. Now again same question, what do you mean by stack? Stack is a Last linked in, last out. structure which follow Last in, in first out. One by one. Now let me call the student's name. Just wait. Yes, Rabindra Sharma. Yes, ma'am. Yes, what do you mean by stack? स्टैक एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लीफो के सहायता से काम करते इंसर्ट और डिलीट करते हैं. Okay. Yes, Rahul Kumar, 138. Rahul Kumar, 138. Rishabh Raj, Shravan Kumar. These are the students. Yes, Rishabh. यस मैम. मैम स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो लिफो रूल से वर्क करता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जब हम ऐड करते हैं वो सबसे लास्ट में आउट होता है. Okay, very good. Yes, Shilpi, what do you mean by push operation in this stack? Yes, ma'am. Push operation. What is push? Uh,
मैम I don't know मैम। वेरी गुड। सुनीता? मैं बता रही हूँ, रुकिए। पुश में जितने भी एलिमेंट होते हैं, एक को एक की जगह पे दूसरे को रख करके फिर उसको हटा करके फिर दूसरे एलिमेंट को नो डालते हैं नो और नो, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग डियर, रॉन्ग। ये सुनीता, ओके। सुनीता कुमारी, निधि कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, श्रवण कुमार, राहुल कुमार, are you people here? Any another student who know about push operation? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. push means ma'am insert the data in stack. Very good. So guys, push means simply inserting the data and pop means removing the data. And peep means to display the top. So again, in the push operation, when we implement this program using array, that time we checked if top equals to max minus 1, print overflow. Else top equals to top plus 1 and top equals to value. Finish. So here what we are going to check, as this is we are implementing this stack this time using linked list, so there will be no operand. So we are simply going to allocate the memory for your new node, and then we are going to set the new node data equals to value. Now if your top equals to null, if your top equals to null, that means in your previous program, whenever your start equals to null, so simply new node next equals to null and top equals to new node. Else new node next equals to top and top equals to new node. And end of if. Simply हम लोग क्या चेक करेंगे? Now just in your program number 7, just consider this top as a start. So here we are going to consider the start pointer as a top. तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये वाला एक नोड है, इंसर्टेड है, वन नोड इज ऑलरेडी इंसर्टेड। नाउ नेक्स्ट नोड को हम लोग कहाँ पे करेंगे? एट द बिगनिंग। उसके नेक्स्ट नोड को एट द बिगनिंग, फिर से उसके जो न्यू नोड इंसर्ट करेंगे एट द बिगनिंग। तो टॉप में हमेशा कौन सी नोड का डेटा होगा? जो नोड हमने सबसे लास्ट में इंसर्ट किए। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. हम लोग क्या करेंगे? पहले एक नोड को इंसर्ट किया, डन। इस नोड को किस में दे दिया? टॉप में। देन उसके बाद जब फिर से न्यू नोड इंसर्ट करनी है, न्यू नोड को इंसर्ट किया, नाउ टॉप किसको दे देंगे? ये वाली न्यू नोड को। फिर से न्यू नोड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट किया, टॉप किस में दे देंगे? इसमें। सिंपली इंसर्ट एट बिगनिंग करना है। बट हियर हम लोग स्टार्ट पॉइंटर को क्या एज्यूम करके चलेंगे? नल। नाउ सेम अगर हमें क्या करवाना हो? पॉप। तो अगर आपका टॉप ही नल है देन सिंपली प्रिंट अंडरफ्लो। अदरवाइज अभी ये बताओ, फर्स्ट नोड को रिमूव करना है इस नोड को, तो क्या करेंगे हम लोग? टॉप में किसकी वैल्यू आ जाएगी? Second node के मैम। वेरी गुड। तो हमें फर्स्ट नोड को रिमूव करना है, इसको रिमूव किया, टॉप को क्या कर देंगे? टॉप नेक्स्ट। तो सिंपली पॉइंटर इक्वल्स टू टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट एंड देन फ्री पॉइंटर। जस्ट एज्यूम हियर, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पॉइंटर को क्या नेम दे रहे हैं? टॉप। नाउ द थर्ड वन, पीप। अच्छा बताइए, अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो टॉप की वैल्यू को तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे? How we can display the top element? Hello, ma'am. Yes, Ma'am, Raj.
मैम पहले तो चेक कर लेंगे कि अंडरफ्लो है कि नहीं, उसके बाद मैम एक पॉइंटर को वेरिएबल उसको अज्यूम कर लेंगे टॉप पे, और टॉप का जो डाटा होगा उसको मैम प्रिंट नहीं कराना तो नॉर्मली प्रिंट करा देंगे ना यहाँ पे, तो इफ टॉप इक्वल्स नल अंडरफ्लो, अदरवाइज प्रिंट टॉप डेटा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी टॉप डेटा। ओके जो हम दूसरा पॉइंटर तो लेते, अगर हमें उसको क्या करना होता था, रीशिफ्ट करना हो। लेट्स सपोज टॉप हमारे पास ये है, अगर हमें इसको प्रिंट कराना हो, दैट टाइम वी विल यूज सम एक्स्ट्रा पॉइंटर पीटीआर। बट हम टॉप हमारे पास यही है, यही का डेटा प्रिंट कराना, तो सिंपली प्रिंट एफ। अब डिस्प्ले कैसे कराएंगे इस लिंक लिस्ट को? ये जो हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया है, इसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे? मैम स्टैक है, दिस इज योर टॉप, इसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे हम? Ma'am, top equal to null, then print underflow and ओके, top equal to data. एल्स मैम पूरा स्टेप को मैम डिस्प्ले कराना है क्या? हाँ जी, पूरे स्टैक को डिस्प्ले कराना है। मैम तो इसके लिए तो पहले मैम अंडरफ्लो का कंडीशन वो चेक कर लेंगे, उसके बाद एक अनदर मतलब पॉइंटर लेंगे मैम, और पॉइंटर को टॉप नेक्स्ट करते जाएंगे मैम, और जो वैल्यू आते जाएगा उसको प्रिंट कराते जाएंगे। वेरी गुड। तो जैसे आप लोगों ने इन योर प्रोग्राम नंबर 7 जैसे डिस्प्ले कराया था, सेम वैसे ही डिस्प्ले कराना है। एक न्यू पॉइंटर लेंगे, उसको बस वहां पे हम लोगों ने क्या वेरिएबल लिया था, कौन सा पॉइंटर यूज किया था, स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट की जगह उसको नेम क्या दे देंगे, टॉप फिनिश। तो स्टैक में क्या है, ये हमारे सबसे पहले इंसर्ट किया था, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे। तो अगर इसको एज ए स्टैक प्रिंट कराना है तो सबसे पहले ये प्रिंट होना चाहिए, देन दिस वन, देन दिस वन। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक न्यू पॉइंटर लेंगे ptr, फिर उसके बाद until your ptr next not equals to null और ptr not equals to null, हम लोग उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, प्रिंट कराते जाएंगे। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, हियर पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट, print the data. So anyone is having any confusion in this algorithms? नो मैम। What about rest of the batch? Only 3 no's. Is this program you need to implement? I'm not going to help you. Anyone is having any kind of doubt? Now the next one is the how to implement queue in the linked list. How we can implement queue using linked list. Now you people first tell me, what do you mean by queue? First in, first out. Very good. FIFO, first in, first out. Anything else about queue? Let's try to speak, all of you. मैम linear data structure। Very good. Rabindra, you are wrong. Q is not LIFO, it's FIFO. इंसर्शन मैम रेयर में होता है और डिलीशन एट द फ्रंट में होता है। Very good. Anyone else? Anything else? And there are 4 types of queue. First one is circular, second one is DQ, and third one is priority, and fourth one is multiple. Okay. Hello? Anyone else? The very first queue is simple queue. Yes, ma'am. The very first queue is your simple queue. Yes, guys, anyone else who knows about queue? So your queue is a linear data structure which indicates FIFO, first in, first out. Means the element were inserted first, that will be the elements to be removed first from your queue.
So in the queue, we require two things. The first one is the front and the second pointer is the rear pointer. With the help of rear pointer, we are going to insert the elements in your queue, and with the help of front pointer, we are going to remove the values from your queue. And now simply, when your queue is empty, that time your front and rear both will be -1. And again, when we implemented this queue using array, that time we will decide the size of array first. But here, as this is the link, we are now implementing this queue using linked list. And we already know that in the linked list, there is no particular size defined in the program. The space is allocated to your nodes at the runtime. So again here, to insert any element, first we need to allocate the memory for a new node. So simply just allocate the memory for your new node and you can name it to anything. Pointer, new node, anything. Now in this step 2, whatever the new node you created, its data should be the value we are going to ask from the user. Now the third step, if your front equals to null, तो बताइए अगर हमारे पास फ्रंट ही नल है इसका मतलब क्या हुआ? अंडरफ्लो Underflow. नो, अब इंसर्ट करना, इंसर्ट में अंडरफ्लो हम चेक ही नहीं करेंगे. मैम तो फ्रंट को वो 0 मतलब -1 पर रहेगा मैम, तो फ्रंट को 0 पर ले लेंगे और रियर को भी 0 पर ले लेंगे. मैंने पूछा फ्रंट इक्वल्स टू नल का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंट इक्वल्स टू नल? मैम नो एलिमेंट इन क्यू. One by one. This is not the fish market. This is your lab. So one by one. What do you mean by front equals to -1 or front equals to null? What is the meaning of this line? Yes, class. You can take the help from your PDF. There is no element in the queue. Very good. Very good, Jai Shankar. So guys, front equals to null means your queue is empty. There are no elements. So from the next time, before answering, just listen to the question properly. मैम तो इसका तो अंडरफ्लो भी तो हो सकता है, मतलब है ये नहीं एलिमेंट तो मैम. इंसर्शन में हम लोग अंडरफ्लो Okay, कभी yes, चेक नहीं yes. करते हैं. हम कितने बार Yes, डिस्कस कर चुके हैं. अंडरफ्लो का मीनिंग भी तो यही होता है ना, योर क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी. So if your front equals to null, we are going to set your front and rear equals to pointer. When we use it as a stack, as a array, that time we set your front and rear equals to 0 whenever it is -1. उसका मतलब क्या था? 0 का मतलब वहां पे इंडेक्स 0, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग कुछ होगा नहीं. तो सिंपली वी आर गोइंग टू सेट योर फ्रंट एंड रियर इक्वल्स टू योर न्यू नोड. अब न्यू नोड को यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो. एंड उसके बाद हम लोग क्या सेट करेंगे? योर फ्रंट नेक्स्ट एंड रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. So here we are going to use 2 pointers, front and rear. Let's suppose this is your new node. तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे what is the value of your front. Let's suppose this is your front and this is your rear. The second one is rear, this one is front. If front equals to -1 and rear equals to -1,
we are both going to set front and rear equals to pointer. तो इसमें क्या आ जाएगा फ्रंट के अंदर your pointer and इसमें भी क्या आ जाएगा in your rear also pointer एंड इसके साथ ही हम लोग क्या सेट करेंगे योर फ्रंट नेक्स्ट एंड रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू नल दैट मीन्स अब हमारे पास एक ही नोड है दोनों पॉइंटर्स एक ही नोड को डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसका जो भी नेक्स्ट होगा डेटा तो हम सेट कर ही देंगे इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम लोग क्या सेट कर देंगे इक्वल्स टू नल अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे इफ देयर इज ओनली ऑलरेडी वन नोड लेट्स सपोज ये वाली नोड ऑलरेडी है हम लोग यहाँ पे क्या सेट करेंगे रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंटर एंड रियर इक्वल्स टू पॉइंटर एंड रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू नल अब नाउ लेट्स सपोज लेट मी अगेन शेयर यू माय स्क्रीन जस्ट अ सेकंड more clarification yes guys is my screen visible to you people Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, not this one no, ma'am. No, this. wait now No, ma'am. No, ma'am. No, no, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Visible, guys ma'am. जिसके भी इधर से सॉन्ग्स बज रहे हैं प्लीज म्यूट योरसेल्फ yes guys is my screen visible Yes, ma'am. एल्गोरिदम लिखा हुआ आ रहा है उसमें Yes. Okay, now this is your algorithm. According to the step 1, हमें क्या करना है? We need to create a new node. Memory allocate करी, new node create किया. Let's suppose this node name is pointer. You can give any name to this pointer. Now this pointer node will contain show fields. And the next node, we need to set data equals to value. For this, we are going to ask the user to enter some value. We are going to scan. Now let's suppose that value is 10. Now the third step is saying if your front equals to null. Let's suppose this is your front pointer. And this one is your rear pointer. And at the beginning, when your linked list is empty, the value of these both pointers should be -1 or null. So when your front equals to null, we are going to set front and rear equals to pointer. That means आपका rear भी इसको point करना चाहिए and your front भी इसको point करना चाहिए. एंड इन दोनों का नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए नल योर फ्रंट नेक्स्ट एंड योर रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू नल अब नाउ लेट्स सपोज दिस इज फॉर योर नोड 1 अब लेट्स सपोज हमें एक और नोड को इंसर्ट करना है दिस इज योर न्यू नोड ठीक है इस न्यू नोड को भी हमने नेम क्या दिया पॉइंटर लेट्स सपोज इसका एड्रेस कितना है 100 तो ये जो प्रीवियस नोड थी इसका एड्रेस कितना था जस्ट एज्यूम एज 50 जब हमने प्रीवियस नोड क्रिएट की थी यहाँ पे फ्रंट इक्वल्स टू रियर का मतलब क्या होगा रियर इक्वल्स टू पॉइंटर का मतलब क्या होगा your rear is having address 50 and same way your
when we set front equals to pointer. अब इसका मतलब भी क्या हुआ front equals to pointer का, that your front is also containing address 50. Now let's suppose again we want to insert a new node, इसको name हमने क्या दिया, pointer, and for this new node just assume the address is 100. So again with the step 2 we are going to setting here value, for example like value is 15. Now comes to the step number 3. Here we are going to check if your front equals to null. No, front is not equals to null. So we will directly move to your else part. As this loop is wrong, so we directly moves to the else part. Now else, what else is saying, set rear next equals to pointer. तो जो भी आपका ये rear का next होगा हम इसको क्या set कर देंगे, pointer to your 100 and your rear equals to pointer. अब rear आपका किसको point करेगा, to this 100 rather than 50. rear किसको point करेगा now, to this 100 and rear के next को फिर से क्या बना देंगे, -1. Rest the program is same. One second. Rest of your program will be same, but यहाँ पे हमने देखो in your first program of linked list we use just one pointer start, and now in your program of stack we use one pointer name top. Here we are going to use two pointers front and rear. तो ऐड हमें भी पता है अगर हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो फ्रंट के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ ये फर्स्ट नोड की, एंड रियर के पास आपके लास्ट नोड की. तो हमने वही किया, जो भी हमारी फर्स्ट नोड थी उसको हमने फ्रंट की वैल्यू दे दी है, एंड रियर जैसे हमने न्यू नोड को इंसर्ट किया तो क्या बना दिया, रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू योर पॉइंटर एंड योर रियर इक्वल्स टू पॉइंटर एंड देन रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. यहाँ पे हम लोग दो नोड्स यूज करेंगे, दो पॉइंटर्स यूज करेंगे फ्रंट एंड रियर, जो हमें क्या बताएंगे, फ्रंट इज गोइंग टू टेल यू द address of your first node and rear is going to tell you the address of your last node. Yes guys, now anyone is having any doubt? I have a doubt मैम. Yes sir. मैम ये दोनों जो नोड क्रिएट किए हुए हैं मैम आपस में कनेक्ट कहाँ है? कौन सी नोड? ये वाली? ये जो 10. यस मैम. ये वाली कनेक्ट, देखो ये कनेक्ट होंगी. ये कनेक्ट कैसे होंगी? This is going to connect with the front and rear. Because यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, जो आपके पास फ्रंट में किसकी लोकेशन होगी, to your first node, and rear के पास पहले हमारे पास rear किस पे था, to this node, and अभी हम लोग rear क्या करते जाएंगे, आगे आगे उसको मूव करते जाएंगे. But this way it is going to connect. हेलो मैम. यस सर. मैम ये मुझे ये कहना था कि ये दोनों नोड तो मतलब कनेक्ट रहेंगे ना मैम, ये मालूम करने के लिए कि हाँ जी कनेक्ट रहेंगे. तो मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो एक नोड क्रिएट किए हैं मैम, इसको न्यू नोड पॉइंटर लेना होगा हमको. कौन सी न्यू? हाँ ठीक है, डन. अभी तो मैम ये दोनों कनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि न्यू नोड के नेक्स्ट में जो एक और पॉइंटर का क्रिएट करने वाला उसका एड्रेस डाल देंगे और उसके नेक्स्ट में नल करेंगे, तभी तो कनेक्ट होगा. ये दोनों कर सकते हो आप. यस मैम, तो वही बोल रहे थे क्योंकि अभी तो ये दोनों कनेक्ट नहीं. यस. Now the next one is the if you want to remove anything from your queue. अब बताइए अगर हमें डिलीट करना वाला एलिमेंट तो हम कैसे करेंगे? How you can delete the element from the queue normally, not in this thing. In the normal situation. हेलो मैम. Yes. मैम जिसको डिलीट करना है जिसको डिलीट करना है उसके एड्रेस को हमको नल बनाना पड़ेगा और उसके एड्रेस को उसके नहीं नॉर्मल इन योर क्यू. मैम wait Raj, wait.
Yes, ma'am. Let me talk to the rest of the batch. Yes, guys, how we can delete any element from your queue? Front equal to front minus 1, ma'am. Front equals to front minus 1. Wrong. हम बोले मैम. Yes, ma'am. Wait, Raj. Wait, Ma'am. Raj. Let me first discuss with you rest of the batch. Yes, Yes, ma'am. guys. Yes, हाँ ma'am. जी बताइए. Ma'am, front से How तो हम you insert can front से insert कहाँ करते हैं? We are going to remove the elements from the front and then we insert the element from your rear pointer. At least basics तो मत बोलो बार बार. Yes, rest of the batch. How we can delete the element from your queue? If you people want, you can use your PDFs, books, PPT, which are already shared in your e-content. मैम Yes. मैम जो फ्रंट का एड्रेस होगा मैम उसको फर्स्ट नोड के नेक्स्ट का जो मतलब एड्रेस होगा उसको मैम पॉइंट कर देंगे फ्रंट में. Very good. देखो नॉर्मली हम लोग क्यू से कैसे डिलीट करते थे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर front. If your front equals to null, then simply that means there are no elements. Otherwise, set here. We will use some new node. Normally हम लोग क्या करते थे? Simply your front equals to front plus 1. तो बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा? Front equals to front next. And here, as we allocate the memory using dynamic memory allocation, so we are going to free your memory. So simply your step 2. So yes, guys, is my screen visible to you people? Yes, ma'am. So simply your front equals to null. That means underflow. Otherwise, we will use some new pointer. For example, PTR, and we are going to set PTR equals to front, and then simple your front equals to front next and free pointer. Simple. क्या करेंगे हम यहाँ पे एक न्यू पॉइंटर लेंगे जिसको सेट करेंगे इक्वल्स टू फ्रंट. Your front equals to front next. That means your front is going to point your second node of your linked list and then free pointer. Now the third one, how you can display the elements from your queue. हेलो मैम. Yes. मैम मैम Yes. पहले अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेंगे और अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैम व्हाइल लूप में जाके फ्रंट इज इक्वल्स टू 0 से लेके रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 तक जाएंगे और फिर प्रिंट करा देंगे. नहीं यहाँ वो तो नॉर्मल था. अब यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट है. यहाँ पे ना तो फ्रंट इक्वल्स टू 0 होगा या तो मैम फ्रंट नल होगा. 1 सेकेंड. या तो फ्रंट आपका नल होगा या फिर आपका रियर होगा. मैक्स माइनस 1 भी नहीं होगा. तो आप कैसे डिस्प्ले कराओगे? हेलो मैम. यस राज. मैम मैम अनदर पॉइंटर एक यूज करेंगे. पहले Okay. अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेंगे मैम. उसके बाद एक ठीक है. अनदर पॉइंटर करेंगे और पॉइंटर को फ्रंट में सेट करेंगे
और पॉइंटर को नेक्स्ट करते जाएंगे मैम जब तक मैम कि फ्रंट आ जाना है, मतलब फ्रंट मतलब जहाँ पर हो, और वो बारी बारी से उसको डिस्प्ले कराते जाएंगे। कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ रॉन्ग है। So guys, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we will use some another pointer, for example PTR, pre-PTR, P, A, B, C, anything. We are going to set that pointer equals to your front, and then we are going to print the front data, and उसके बाद हम लोग क्या करते जाएंगे, जो पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट, जो भी हमने पॉइंटर लिया होगा उसको नेक्स्ट करते जाएंगे। कब तक, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है, नल नहीं मिल जाता। तो सिंपली वी आर गोइंग टू प्रिंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रिंट कराना है। स्टार्ट से लेके लास्ट तक प्रिंट कराना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंटर लेंगे और उसको कब तक चलाएंगे, जब तक उसका नेक्स्ट क्या नहीं हो जाता है, नॉट नल। सो क्लियर गाइस? यस मैम। इसी के साथ यस एक और प्रोग्राम हमने जो लास्ट उसमें डिस्कस किया था इन योर लास्ट लैब ऑफ योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। So anyone is having any doubt in your circular linked list? Because last time I told you that you can try to implement this program at your home. Few of you are saying that we are having this kind of issue. So let me again discuss with you. Algorithm of your circular linked list. So the very first algorithm is to insert at the beginning. So बताइए आप लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट में at the beginning हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं? हेलो मैम। यस राज। मैम पहले तो एक मेमोरी न्यू नोड नाम का एक मैम नोड बना लेंगे। उसके बाद इफ कंडीशन चेक करेंगे मैम कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, तो स्टार्ट को न्यू नोड में असाइन करेंगे और न्यू नोड का नेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक उसके है। बाद अगर एल्स पार्ट में जाते हैं तो अगर न्यू नोड का नेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट में हो जाएगा और स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, और उसके बाद रिटर्न करा देंगे। रॉन्ग। हेलो मैम। यस। मैम सबसे पहले अवेल चेक करेंगे मैम, अवेल इक्वल टू अगर नल होगा तो वो तो ठीक है, ओके अवेल चेक कर लिया। उसके बाद सेट न्यू नोड करा देंगे अवेल के मतलब बराबर। ओके उसके अवेल इक्वल टू अवेल नेक्स्ट कर देंगे। ओके आफ्टर दैट और जो न्यू नोड होगा ना, एक न्यू नोड ले लेंगे, उसमें कुछ डाटा स्टोर करा देंगे। ओके और न्यू नोड इक्वल टू नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट करा देंगे। उसके बाद और पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट करा देंगे। देन व्हाइल लूप लगा देंगे। उसके बाद में इफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट हो जाएगा तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट करा देंगे। देन पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड एंड स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड देन एग्जिस्ट। Guys, this is the circular linked list, means the elements are in a circle. पहले questions पूरा सुनो. The question is how you can insert the element in your circular linked list. मैम कौन से पोजीशन पे? Sorry, कौन से पोजीशन पे मैम? at the beginning.
ऐसे आप लोग तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके आए हो सभी घर से। मैम जो बोला मैम वो किए, हम नहीं किए हैं। वो मुझे मैम पता चल रहा है। यस। मैम जो स्टार्ट होगा मैम उसके प्रीवियस मैम प्रीवियस में मैम न्यू नोड का मैम एड्रेस प्रीवियस डालेंगे। प्रीवियस होगा ही नहीं इसमें। अच्छा, सर्कुलर सिंगुलर लिंक लिस्ट। मैम यस, इसमें एक पॉइंटर का यूज करेंगे वेरी गुड। उसके बाद और उसके बाद पॉइंटर को नेक्स्ट आते जाएंगे तब तक वो मतलब स्टार्ट के इक्वल टू में, सॉरी, ठीक बोल रहे हो। जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट क्या नहीं हो जाएगा, स्टार्ट। स्टार्ट। देन देन मैम एक कंडीशन है, देन मैम उसको नेक्स्ट कर देंगे, न्यू नोड में नेक्स्ट कर देंगे, करते जाएंगे उसको। नो, पता नहीं तुम लोग बोलते हेलो बोलते मैम। क्या ही बोल रहे। वेट, नाउ पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू। बोलते बोलते पता नहीं तुम लोगों को क्या हो जाता है। Yes, guys, is my screen visible to you people? यस Yes, मैम, ma'am. विजिबल। Okay. So here in your circular linked list, there will be difference only circular singular linked list when we are going to insert node at the beginning and at the last. Rest of the three cases, insertion in the sorted linked list, insertion before a node, after a node, that will be similar. So when we are going to insert the node at the beginning, now this is a circular linked list means your first node, second, and let's suppose this one is your last node. Sure, your last node's next will contain the address of your start pointer. This is your start, and this start is having the address of your first node. So this is your circular linked list. So here with the first three steps, we can simply replace them using a malloc function. Now new node data equals to value. Let's suppose this is your new node containing some data which is entered by the user. Now new node next equals to start. This is your new node. That's next equals to this start. For example, this start is having address 10. This is your address 10. तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या दे देंगे, 10, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू यूज सम पॉइंटर. We will going to use some pointer equals to start and until your pointers next not equals to start. Pointers next start कब होगा, at your last node. तो जैसे हमें ये मिल जाएगा, what we are going to set pointers next equals to new node. Let's suppose its address is 100. जैसे हमें ये वाली नोड फाइंड हो जाएगी, इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस दे देंगे, to your new node. And then your start equals to new node. Means your start is going to point this 100. तब इसके नेक्स्ट में हमने पहले इसका एड्रेस दे दिया था 10 का. स्टार्ट अब आपका इसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट इसको पॉइंट नहीं करेगा. जो आपके लास्ट नोड का नेक्स्ट था, नाउ दैट इज गोइंग टू पॉइंट योर न्यू नोड. दिस विल बी द एल्गोरिथम. मेनली हमें करना क्या है, स्टार्ट में देना है न्यू नोड का एड्रेस, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस, एंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस. सेम वे अगर इंसर्ट करना हो एट द एंड, अब बताइए अगर हमें यहाँ पे नोड को इंसर्ट करना हो एट द एंड, दिस नोड,
एड्रेस 200, तो कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग? हेलो मैम। यस, मैम पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वो कर दिया मैंने। देखो ओके। उसको एड्रेस भी दे दिया, उसमें वैल्यू भी ले ली है। ओके मैम। सिर्फ और इतना बताइए इसको इंसर्ट कैसे करेंगे? मैम पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में जो स्टार्ट करेंगे, और एक रॉन्ग, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट क्यों करेंगे? एट द एंड हमें इंसर्ट करना है, पहले क्वेश्चन सुना करो। मैम ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट कर दिया, बट उसका मीनिंग क्या हुआ बताइए? यस राज, हेलो जो भी मैम। आपने यस राज, जो भी आपने बोला न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैम जो न्यू नोड का स्टार्ट होगा ना मैम, जो स्टार्ट का वैल्यू होगा वो हाँ मैम जी, न्यू नोड के नेक्स्ट में चला जाएगा मैम। क्यों देंगे वो हम, ये मैम बताइए पहले। मैम स्टार्ट को पॉइंट करने के लिए नहीं हो पाएगा मैम। क्यों? सही बता रहे हो, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट होगा, बट क्यों होगा? मैम स्टार्ट को पॉइंट करने के लिए पहले देंगे उसमें। वेरी गुड, बिकॉज एज दिस इज अ सर्कल, योर न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा? योर स्टार्ट। योर लास्ट नोड का नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? स्टार्ट का एड्रेस। ओके, इसके बाद? मैम इसके बाद मैम पहले वो एक पॉइंटर लेंगे मैम फिर से, और ठीक उसको है, उसको स्टार्ट में असाइन करा देंगे मैम। उसके बाद? उसके मैम एक वाइल लूप लेंगे, और जो न्यू पॉइंटर लिए थे उसको नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक कि नॉट इक्वल टू स्टार्ट हो। ओके, उसके बाद मैम उसी के अंदर मैम पॉइंटर को पॉइंटर नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद मैम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, और अगर और उसमें मैम पॉइंटर नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे मैम। वेरी गुड। तो गाइस, इसमें हम लोगों को क्या करना है? एट द लास्ट एंड करना है। तो एट द लास्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास लास्ट नोड कौन सी है। ये है लास्ट नोड। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले किसका एड्रेस था? स्टार्ट का। अब लास्ट नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा? तो ये न्यू नोड। एंड न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? दिस स्टार्ट। फिनिश। सेम वे इसमें दो ही केसेस डिफरेंट होंगे फ्रॉम योर सिंगुलर लिंक लिस्ट। डिलीट एट द बिगिनिंग एंड डिलीट एट द एंडिंग। नाउ टेल मी, अगर हमें एट द बिगिनिंग डिलीट करना हो तो हम कैसे रिमूव करेंगे? बताइए। अगर फर्स्ट नोड को रिमूव करना हो तो हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव? मैम पॉइंटर का नेक्स्ट को मैम स्टार्ट का नेक्स्ट कर देंगे, और फिर स्टार्ट को फ्री कर देंगे। वेरी गुड। बट मैम जो वेट 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 वेट। मैम इसमें भी स्टार्ट पॉइंटर लेकर रन वो वहाँ पर जाना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू स्टार्ट तक। उसके बाद फिर पॉइंटर के नेक्स्ट को स्टार्ट को नेक्स्ट करेंगे, तो पॉइंटर को फ्री करेंगे। So this is your linked list, your start. तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट से हम लोग लेके पहले सर्च करेंगे लास्ट तक। लास्ट पे पहुंचे। अब इसके नेक्स्ट को हम लोग क्या बना देंगे? स्टार्ट का नेक्स्ट, जो आपका क्या होगा? योर दिस वन सेकेंड नोड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज वन न्यू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, pointer a equals to your start, and now we are going to repeat the loop while your pointer not equals to start. And जैसे हम वहां पे पहुंच जाएंगे, what we are going to set? Pointer equals to start next. अब start किसको पॉइंट कर रहा है? इसका नेक्स्ट कौन सा होगा? ये वाली नोड। तो your pointers next equals to start next, and then फ्री कर देंगे हम इसको। अगर इसमें आपको ये पॉइंटर यूज करने, ये पॉइंटर यूज करिए, अदरवाइज नॉर्मली फ्री स्टार्ट। एंड इसके बाद क्या कर देंगे? स्टार्ट इक्वल्स टू योर पॉइंटर नेक्स्ट। स्टार्ट इक्वल्स टू योर पॉइंटर नेक्स्ट। अगर यहाँ पे आपको a यूज करना है, यू कैन यूज द वेरिएबल a,
sorry, pointer A. Otherwise, normally simply first free your start and then start equals to pointer next. Now same way, if you want to remove the element at the last, तो अगर at the last वेरिएबल को रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करोगे? मैम इसमें तो फिर एक प्री पॉइंटर और पॉइंटर लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट। जब स्टार्ट आ जाएगा तो प्री पॉइंटर के नेक्स्ट को स्टार्ट दे देंगे और पॉइंटर को फ्री कर देंगे। वेरी गुड। अब हम इसमें क्या करेंगे? First we are going to check your start equals null, then end of flow. Otherwise, simply use pointer equals to start and repeat until your pointers next not equals to start. And उसके साथ हम लोग प्री पॉइंटर यूज क्यों करेंगे? बिकॉज हमें एक सेकेंड लास्ट नोड की भी जरूरत होगी। We required a second last node. तो जैसे हमें लास्ट नोड ये मिल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो इसका प्री पॉइंटर पे प्रीवियस नोड होगी इसके नेक्स्ट को क्या सेट कर देंगे? टू दिस चार्ट एंड इसको क्या कर देंगे बाद में? फ्री। फिनिश। So guys, now please implement these programs. The very first program, implement stack using linked list. Yes guys, hurry up. Do people required algorithms? शो करा दीजिए मैम। Okay, let me just share you my screen. Yes guys, is my screen visible to you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hurry up guys.